Okay, so chapter number 12 is about program development life cycle, and your syllabus says that first of all, you need to show an understanding of the purpose of a development life cycle of a software. Second thing is that you need to show understanding of the need for different development life cycles depending on your program that is being developed. The third thing is that we need to discuss the principal benefits and drawbacks of each cycle, and they are such as waterfall cycle, iterative, rapid application, and development life cycle. Fourth, we are going to look forward the different stages like analysis, design, coding, maintenance, and stages in a program development life cycle. This is your 12.1, and then we have 12.2. So let's start with the 12.1 chapter, and the 12.1 chapter that basically states about the purpose of a program development life cycle. So what is actually a life cycle? Life cycle can be certainly that, for example, we are born in this world, and so on. As we grow, we go to our school, we go to colleges, we go to university, then we get a decent job, and that's how things work out until we become old enough and then we leave this world. This is our life cycle. But similarly, if I'm discussing regarding a program development life cycle, a software development life cycle, that means that in order, if I want to develop a successful program or maybe a versions of many programs, that means that most likely I need to go through a variety of tasks or categories, so just to make my program successful. That, for example, if I gave you a task that you need to create a software or you want to create a program, that does not certainly works like you started writing the code. There are some number of stages written that tell you that you first need to complete the step number one, step two, step three, and step four, and so on. So in a program development life cycle, when you want to develop a program, there is going to be some certain tasks that you need to complete to solve your problem. The development has to be in a sequential form, in an ordered form, and it all has to be documented. Why it has to be documented? So it is even easy for programmers to understand what you want to convey in your program. Now, this chapter is going to discuss about the program development lifecycle, and in the 12.2, the stages of uh, program development life cycle. It basically shows you different stages involved. Like I can have analysis stage, I can have design stage, coding stage, testing stage, and maintenance stage. All of these stages are a part of your program development life cycle. One by one, we are going to discuss each stage in depth. Starting from the analysis part. Analysis, we have also discussed this in O levels regarding your decomposition abstraction, and in your analysis part, that before any problem you have to solve, you first need to clearly define out that what the problem is, and you need to set out everyone working on that solution that what I really need, what I'm working on, what should be the my program specification. The analysis stage starts with a feasible study that has to be followed by an investigation and fact to identify exactly what is required from the program. That is an analysis one. That means that before any problem is solved, we first need to clearly define that what the problem is. Like for example, if I give you an exam, so the first thing that you are required to do is that you are going to analyze it. That sir, what should I be? What are the questions that looks easy to me? So first I analyze them and then I solve them. In the second stage, I have the design part, and in the design part, just after my analysis is done, what I usually do is that I design them or I formally document into them into different versions so that they are understandable to me. Like I can make use of flowcharts, I can make use of structure charts, I can make use of pseudocodes. I can even document them just to tell that how should my pseudo program should look like. The third stage I have is the coding part, and in the coding part, what I usually do is that I start writing my program or a set of programs into a written programming language. And testing and maintenance, that's simpler as well. And I believe that we have discussed this already in my starting topics of P2. We have discussed with you regarding computational thinking. Computational thinking involves the stages such as
abstraction, decomposition, pattern recognition, data modeling, right? That's a part of that, right? I'm just discussing with you that if I want to design a software, if I want to create a software, so what should be the number of steps that I should be taking? So I've just defined that first of all, I need to make an analysis. The second part is the design, and the third part is the coding part in which I write my programming language. And in the fourth part in the testing one, what I usually do is that I the program is run with many different types of test data to check that if my program is actually working or not. Like for example, if the program is for the number of students and the number of students in my class is 1 till 10. So most probably the input value that I'm going to take is the value that is between 1 and 10. For example, if someone enters 100, for example, if someone enters 0, that is a false value. So I also need to test the each module of the program that it is correct or not. And then in the last stage, I have the maintenance part. You guys need to understand that everything in this world requires maintenance. Let it be yourself, your health comes first, or let it be any machine. Maintenance is to ensure that your program, your software is able to work effectively or not. This can involve correcting the errors. This can involve removing the errors or maintaining the functionality or adding or updating new features. So, is this clear to you all? Show understanding of the different stages I have: analysis, design, coding, testing and maintenance. इसमें किसी को कोई confusion है? बेटे डिजाइन वाले पार्ट के अंदर what I do is that I just after my analysis part, I design my analysis draft into different ways, which such as an example of a structure chart, such as an example of a pseudo code, such as an example of a flow chart. मैं उसको डिजाइन करता हूँ एक इस तरह से कि किसी भी पर्सन को वो समझ आ जाए कि कौन सा प्रोग्राम मैंने कैसे करना है, उसको मैंने कैसे सॉल्व होगा। जैसे मेरे पास एक रफ मैप होता है, मेरे पास एक ड्राफ्ट होता है कि मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ यहाँ जाऊंगा, इस तरह से मैं काम करूंगा तो मेरे पास ये सॉल्व हो जाएगा। तो कोडिंग करने से पहले यू शुड मस्ट बी हैविंग अ मैप। ये उसका एक तरीकेकार है कि आप अपने प्रोग्राम को डिजाइन कैसे करते हो। डू यू हैव एनी कंफ्यूजन्स इन दिस एरिया और शुड आई मूव ऑन? Aman, do you have any queries? No, sir. Move on. Okay, and is Dua also taking the class along with you? Yes, sir. Okay, bete, thanks. Now, let's move on to the next part. The next part is the different development life cycles that are included, and your syllabus says that you should be aware regarding the different formats, such as what is a waterfall, what is an iterative, what is an rapid application, and development RAD. So, in different development life cycles, hello. Okay, so in your different stages of development life cycle, uh, we need to understand that each program has its own strengths and it has different models according to it. Like, for example, different models have been developed for the life cycle for developers to use in practice. अभी तक हमने
हमारे प्रोग्राम को जिस तरह से डिज़ाइन करना है वो तो मैंने देख ही लिया है, लेकिन अब मैंने डिफरेंट डेवलपमेंट के जो स्टेजेस हैं जो लाइफ साइकिल के अंदर, वो आपसे जो है वो डिस्कस करने हैं। जैसे जो प्राइमरी एक्सपेक्ट्स हैं उसमें, जिसमें एनालिसिस है, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, वी हैव डिस्कस दिस, आई नो, बट now we are going to discuss that what are different development life cycles. You need to understand the difference between the stages in a life cycle and the different development life cycles, के इनको जब मैं उसकी डेवलपमेंट में आऊँगा अपने प्रोग्राम को, प्रोग्राम के लिए, तो कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। तो हमारे सिलेबस के अंदर बेटा 3 मॉडल्स लिखे हुए हैं, जैसा कि आप लोगों के सामने सिलेबस मौजूद है। आपके पास पहला मॉडल जो है वाटरफॉल है, दूसरा मॉडल आइटरेटिव, और तीसरा मॉडल जो है वो है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, RAD। Now let's discuss the first model that I have right here, which is a waterfall model. And in waterfall model, again, I have the same aspects, which is an analysis, design, coding, testing and maintenance. So अभी हमने discuss किया है आपसे that उसके जो components हैं वो same components हैं आपके पास waterfall model के। and waterfall model के अंदर पहली बात तो है कि वाई इट इज़ नोन एज अ वाटरफॉल मॉडल। अब वाटरफॉल का अगर स्ट्रक्चर आप अपने जहन के अंदर लाएं तो द पॉइंट इज दैट कि फ्रॉम टॉप टिल द बॉटम द वाटर फॉल्स टिल द ग्राउंड, राइट। इसी तरह से होता है। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास जो एक वाटरफॉल मॉडल है, इसकी एक प्रॉपर्टी आपके पास ये है कि ये पूरा स्ट्रक्चर जो है दिस बेसिकली फॉलोज द लीनियर सीक्वेंशियल डेवलपमेंट। मकसद ये कि वन थिंग दैट कम्स इन ऑर्डर इज फर्स्ट देयर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट मॉडल्स यूज्ड, जहाँ पे हर एक स्टेज कंप्लीट होता है पिछले से और फिर नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होता है। दैट मीन्स के द लास्ट स्टेज हैज टू बी कंप्लीटेड फर्स्ट। दिस मॉडल इज मोस्टली सूटेबल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स जहाँ पे आपका टाइम कम हो और आपको आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट भी पता हो। सो आई विल कंटिन्यू विद द प्रिंसिपल्स, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स जस्ट इन 1 मिनट। अजान कंप्लीट हो जाए, सो आई विल कंटिन्यू विद दिस, मीनवाइल यू गाइस कैन रीड इट। तो हम नहीं अजान का एहतराम करें? अच्छा बेटा, वाटरफॉल मॉडल में अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? If you want me to repeat any aspect, you can mention. I am discussing that what are the basic principles of a waterfall model. Basic principles means के
दे हैव टू बी फॉलोड, या उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये दैट इट इज लीनियर। लीनियर मीन्स के ईच स्टेज इज कंप्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट इज बिगिन। अगला स्टेज शुरू होने से पहले जो पिछला स्टेज है उसको कंप्लीट लाजमी होना है। अगर पहला स्टेज कंप्लीट नहीं होगा आप सेकंड स्टेज के ऊपर नहीं जा सकते। ये एक सीक्वेंस के अंदर है। सेकंड, आपके पास क्या है? आपके पास जितने भी स्टेजेस अवेलेबल हैं वो सारे जो हैं आपके पास वेल डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में हैं। एक फुल डॉक्यूमेंटेशन आपके पास है। आप उस डॉक्यूमेंट को बना रहे हो हर एक स्टेज को कंप्लीट करने के बाद। एनालिसिस स्टेज कंप्लीट किया, उसका एक डॉक्यूमेंट बना लिया। कोडिंग कंप्लीट किया, उसका एक डॉक्यूमेंट बना लिया। हम डॉक्यूमेंटेशन हम करते क्यों हैं, हम बनाते क्यों हैं? इस वजह से ताकि जो हमारा प्रोग्रामर है उस जब कोई और लेमैन पर्सन उसको एडिट करे, सो ही शुड बी नोइंग दैट मेरे सॉफ्टवेयर में चल क्या रहा है, मेरे सॉफ्टवेयर में हो क्या रहा है। थर्ड थिंग इज दैट कि इसमें जो आपकी कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट है वो काफ़ी कम है, क्योंकि स्टार्ट से एंड तक अभी हम सिर्फ डेवलपर मोड के ऊपर बात कर रहे हैं। तो कस्टमर तो जब आएगा जब ये प्रोग्राम लॉन्च हो जाएगा। इसके बेटे बेनिफिट्स आपके पास क्या है? इट्स इजी टू मैनेज, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, इट्स इजी टू यूज। स्टेजेस जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते और दे आर कंप्लीटेड वन एट अ टाइम। हर एक स्टेज की स्पेसिफिक डिलीवरेबिलिटी है, स्पेसिफिक फीचर है, स्पेसिफिक फंक्शन है। हर स्टेज जो है एक अलग तरह से आपके पास जो है वो होता है। इट ऑल्सो वर्क्स वेल फॉर स्मॉलर प्रोग्राम्स जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट पता होती हो, वो आपको अंडरस्टूड होती है। लेकिन इसी के जो है हमारे पास कुछ ड्रॉबैक्स और डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस ये है कि इट इज डिफिकल्ट टू चेंज द रिक्वायरमेंट्स एट अ लेटर स्टेज। मकसद ये है कि आपने एक आइडिया था आपके पास, आपने एनालिसिस किया, डिज़ाइन किया, कोडिंग किया, टेस्टिंग पे आ गए। अब जब आपको अगर एक और फीचर अपडेट करना है और आपने अपने एनालिसिस पार्ट के अंदर नहीं रखा तो आपको शुरू से काम करना पड़ेगा। दिस इज वाई दिस इज नॉट सूटेबल फॉर प्रोग्राम्स जिनकी रिक्वायरमेंट चेंज होती होती रहती है। तो ये काम बार बार करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। वर्किंग प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड, जो आपका प्रोग्राम है वो आपकी लाइफ साइकिल में सबसे एंड में प्रोड्यूस हो रहा है। शुरू में आप सिर्फ अपने जो आपका बेसिक काम है, एनालिसिस है, आप डिजाइनिंग है वो कर रहे हो, फिर आप इसके ऊपर आ रहे हो। सो इट इज गोइंग टू टेक सम ऑफ योर टाइम। इट इज ऑल्सो नॉट सूटेबल फॉर लॉन्ग कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, क्योंकि अगर सारा टाइम हम इसी में निकाल देंगे तो जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है उनके ऊपर हम काम कब करेंगे। सो दिस इज रिगार्डिंग द वाटरफॉल मॉडल। आप में से किसी को इसमें कंफ्यूजन है? बेटा आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन है? Move on, sir. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड टाइटल, दैट इज एन आइटरेटिव मॉडल एज पर योर सिलेबस। अब बेटा आइटरेटिव मॉडल क्या होता है? अब आइटरेशन हमने अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर डिस्कस किया। आइटरेशन का मतलब ये है कि कोई भी काम आपके पास अगर बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीटेडली एक ही चीज आप लोगों के सामने आ रही है, तो ये कौन सा मॉडल है आपके पास? ये आपके पास है एक आइटरेटिव मॉडल। अब आइटरेटिव मॉडल के अंदर आपके पास क्या है? सबसे पहले यू आर गोइंग टू डेवलप सब सब सेट्स ऑफ योर रिक्वायरमेंट्स। जैसे कि एक बड़ी रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे जो है कोई एक सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें मेरे स्टूडेंट्स के ग्रेड आए। अब ग्रेड तो वो आ रहे हैं, वो उसका बेसिक फंक्शन है, लेकिन उसके सबसेट्स क्या है? स्टूडेंट का नाम क्या है, स्टूडेंट की क्लास क्या है, ये सारी चीजें। ग्रेड ऐसे ही तो नहीं आ जाएगा ना, उसका एक पूरा एक प्रोग्राम बनेगा। तो आइटरेटिव मॉडल के अंदर आप अपने पास सबसे पहला काम जो आप ये करोगे वो यू आर गोइंग टू डेवलप अ सबसेट ऑफ योर रिक्वायरमेंट्स कि मुझे ये सारी चीजें चाहिए। उसके बाद आप उनको एक्सपेंड करोगे और इस मॉडल को इन्हांस करते रहोगे और आपका डेवलपमेंट का साइकिल चलता रहेगा। हमारे पास जो इसमें प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट के साइकिल्स हैं वो बार बार रिपीट होते हैं जब तक सिस्टम पूरा डेवलप नहीं हो जाता। इसी वजह से इसका नाम आपके पास क्या है? आइटरेटिव मॉडल, बिकॉज वन थिंग इज बीइंग डन अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। दिस मॉडल इज सूटेबल फॉर प्रोजेक्ट्स फॉर विच द मेजर रिक्वायरमेंट्स आर नोन। आपको आपकी मेजर रिक्वायरमेंट्स पता है, बट
सम डिटेल्स आर लाइकली टू चेंज और इवॉल्व विद टाइम। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास था वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल में तो मैंने आपको यही बताया था कि इन सारी फीचर्स को हम बार बार चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एक दफ़ा काम कर लिया तो फिर से दोबारा से चलना पड़ेगा ना। लेकिन आइटरेटिव मॉडल के अंदर क्या है, इफ़ यू वांट टू ऐड इन, इफ़ यू वांट टू रिमूव, इफ़ यू वांट टू इवॉल्व विद टाइम, और आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट सेम है। अब ऐसा ना हो कि पूरा सॉफ्टवेयर ही आप बदल दें। अगर आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट सेम है सो इट्स गुड टू गो। अब आइटरेटिव मॉडल के अंदर क्या है, सबसे पहले तो आपके पास है फर्स्ट वाटरफॉल, दैट द वन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सेकंड में आपके पास क्या है, आपका जो भी आपने उसको एक्सटेंड कराया। थर्ड में आपके पास क्या है कि आपने उसको फर्दर और एक्सटेंड कर दिया। और फाइनल में आपके पास फाइनल वाटरफॉल आ गया। लेकिन ये स्टेजेस आपके पास उतनी दफ़ा रिपीट हो रहे हैं जितनी टाइम्स पे नेसेसरी है। अब इसकी जो है कुछ प्रॉपर्टीज मेरे पास क्या क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो बेटा इसके अंदर ये कि आपके पास जो है इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट है। जैसे जैसे आपका प्रोग्राम बढ़ता जा रहा है, एक एक चीज़ आपके पास जो है इंक्रीमेंट होती जा रही है और प्रोग्राम का डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है रिपीट हो रहा है। अब इसमें जो वाटरफॉल के अंदर हमने डिस्कस किया था कि पहला स्टेज कंप्लीट होगा फिर दूसरा शुरू होगा, इसमें वो चीज़ नहीं है। हम हर चीज़ को इंक्रीमेंट भी करते जा रहे हैं और जो आपका प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है वो रिपीट भी होता जा रहा है बार बार। वर्किंग प्रोग्राम्स आर प्रोड्यूस फॉर पार्ट ऑफ द सिस्टम एट एवरी आइटरेशन। जैसे जैसे आप अपने मॉड्यूल पे काम करते जा रहे हो एक नया मॉड्यूल जनरेट होता जा रहा है। Working programs are produced for part of the system at every iteration and there is a high customer involvement. वाटरफॉल मॉडल में कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, अब आइटरेटिव मॉडल के अंदर आपका कस्टमर भी आ गया एज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। हर एक पार्ट बना के, हर एक मॉड्यूल बना के आपने अपने कस्टमर को दिखाया कि क्या ये सही है। अगर आपके कस्टमर ने बोला इट्स गुड टू गोइंग सो दैट मीन्स दैट यू आर डन। जस्ट इन केस आपके कस्टमर ने कहा यार इसको ऐसे नहीं ऐसे कर दो, इसका कलर चेंज कर दो, कलर की जगह इसकी फंक्शनैलिटी चेंज कर दो, इसमें ये तो आपने डाला ही नहीं, तो फिर आप वो काम दोबारा करोगे। ये कौन सा मॉडल है, आइटरेटिव, क्योंकि एक ही चीज आपको बार बार करनी पड़ रही है या वक्त के साथ साथ चेंज हो रही है। हाउएवर इसके भी आपके पास कुछ बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स क्या हैं कि सम वर्किंग प्रोग्राम्स जो हैं दे आर डेवलप क्विकली एट एन अर्ली स्टेज इन द लाइफ साइकिल। कुछ प्रोग्राम्स जो हैं आपके लाइफ साइकिल के अंदर पहले ही बन चुके हैं, इसको टेस्ट करना आसान है, इसको डिबग करना आसान है। स्मॉलर प्रोग्राम्स को ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं क्योंकि आप ऑल्टर कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट्स को। और जो आपके कस्टमर्स हैं दे आर इन्वॉल्व एट ईच आइटरेशन। तो कस्टमर के लिए जो है कोई फाइनल सरप्राइज नहीं है। जैसे वाटरफॉल के अंदर मैंने पूरा सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाया, सिस्टम बनाया, फिर मैंने अपने कस्टमर को डिलीवर किया क्योंकि उसमें कस्टमर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन आइटरेटिव मॉडल के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक मॉड्यूल बना रहा हूँ और मॉड्यूल बनाने के बाद मैं अपने कस्टमर को दिखा रहा हूँ कि भाई क्या ये सही है। अगर कस्टमर ने बोला हाँ ठीक है तो देन आई एम मूविंग फॉरवर्ड। तो इसका एक और एडवांटेज ये है कि मेरा जो कस्टमर है उसको पता है कि क्या चीज़ बन रही है क्योंकि वो उसके सामने है, मैं हर चीज़ बना के उसको दिखाया जा रहा हूँ। लेकिन वाटरफॉल के अंदर मैं नहीं दिखा रहा, तो कस्टमर के लिए कोई फाइनल सरप्राइज नहीं है। कभी वो आपको ये नहीं कह सकता है सॉफ्टवेयर के अंदर यार मैंने तो आपसे ये कहा था आपने ये बना दिया, क्योंकि आप जो चीज बना रहे हो वो आप उसको रिप्रेजेंट करा रहे हो। इसके बाद बेटा आपके पास इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स इसके पास क्या है कि आपका जो पूरा का पूरा सिस्टम है इसको डिफाइन करने की ज़रूरत है स्टार्ट में, ताकि हम इसको ब्रोक डाउन कर सकें काफ़ी पीसेस के अंदर। जैसे कि आप लोगों को याद है मैंने क्लास में स्ट्रक्चर चार्ट्स पढ़ाया था या डीकॉम्पोजिशन पढ़ाया था, उसमें क्या था, ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ लार्ज पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर वन। इसी तरह से आपने आइटरेटिव में भी करना है कि आपने जो पूरा सिस्टम है उसको ब्रेक डाउन करना है और फिर हर एक सब मॉड्यूल पे काम करते जाना है जब तक वो सही नहीं हो जाता। इस बेटा इसका ड्रॉबैक एक और ये है कि इसको काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत है हर एक स्टेज के ऊपर, क्योंकि आप हर चीज़ जो है अपने कस्टमर से भी आप रिलेट कर रहे हो। एंड इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर शॉर्ट एंड सिंपल प्रोजेक्ट्स, क्योंकि अगर शॉर्ट और सिंपल प्रोजेक्ट्स को आप इतना दिखाने बैठे अपने कस्टमर की बात सुनने बैठ गए तो आपका तो काम हो गया। शॉर्ट से शॉर्ट प्रोग्राम भी जो है वो काफ़ी एक्सटेंड हो जाएंगे। सो डू यू हैव एनी क्वेरीज और कंफ्यूजन इन दिस मॉडल? किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा इसमें?
So if you have any question, you can stop me anytime. Now, I'm discussing the last model for today and the last one for your chapter number 12.1 as well. That is an rapid application development R&D, RAD, RAD. So in your rapid application development RAD, your development cycle is cycle develop different parts of the requirements in parallel. Parallel means that they are working simultaneously using प्रोटोटाइपिंग मीन्स कि आपने अपना एक डिज़ाइन बना लिया यूज़र को दिखाने के लिए कि इस तरह से ये कुछ बन सकता है। जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर बनाना कोई एप्लीकेशन बनानी है तो उसके साथ आपने उसका एक सैम्पल डिज़ाइन तैयार कर लिया कि लॉगिन की स्क्रीन ये आ गई, बाइंग की स्क्रीन ये आ गई, कार्ड की स्क्रीन ये आ गई, ताकि आप अपने यूज़र को अर्ली स्टेज से टेस्टिंग करा सको। Program development cycles are running in parallel for each part of the requirement using a different number of teams. आपने तीनों पैरेलल साइमल्टेनियसली बना ली और आपने तीन टीम्स को तीनों टास्क दे दिए कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, A B C। प्रोटोटाइप भी आपने बना लिया, उसका डिज़ाइन भी बना लिया कि भाई सॉफ्टवेयर ऐसा होगा, इस तरीके से होगा, और ये मॉडल आपके पास सूटेबल होता है कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए, जिनके लिए एक कम टाइम होता है और उनको अपनी बिजनेस की नीड भी यूटिलाइज करनी होती है। अब हम जो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर हाउसेज में यूज़ करते हैं मॉडल, वो आपके पास वाटरफॉल तो हो नहीं सकता है, क्योंकि क्लाइंट की ख्वाहिशात इतनी ज़्यादा होती हैं, वो ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होती। तो अगर आप उसी में ही आप फंस जाओगे, एनालिसिस डिजाइन कोडिंग टेस्टिंग, एनालिसिस डिजाइन कोडिंग टेस्टिंग, सो मोस्टली वी गो फॉर आइटरेटिव टेस्टिंग। एंड 80% जैसे जब मैं काम करता था तो जब आई यूजुअली गो फॉर द RAD स्टेज, आर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, आपने अपने यूज़र की रिक्वायरमेंट लिखी और आपने काम जो है अपनी टीम्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक डेवलपर्स की टीम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया काम, एक डिज़ाइनिंग को दे दिया, एक जो है R&D को दे दिया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, कि तुम इसमें रिसर्च करते रहो, एक जो है कोई मैंने एक और जो है वो टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और मैंने उनके स्टेजेस बना दिए। इससे क्या होता है, साइमल्टेनियसली जो है ना, एक ही बंदे को काम करना नहीं पड़ता। तो आपके पास साइमल्टेनियसली एक ही टाइम में बहुत एक प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाता है। अब इसके प्रिंसिपल्स आपके पास क्या है कि भाई आपको जो है कम से कम प्लानिंग की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आप अपना मॉडल जो है वो बना के दिखा नहीं रहे, आप साइमल्टेनियसली काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग एज अ टीम वर्क। That's the first principle. Second principle is that you might need to reuse previously written code where possible. Make use of automated code generation as possible. You can also automate the codes, and you are already aware of that now these days I don't need to write the codes on my own. I can use them from library programs. I can use them from even the chat GPT as well, artificial intelligence as well, or I can even use the codes that are written earlier. This involves higher customer involvement as customer can use the prototype। अब आपने अपने कस्टमर को प्रोटोटाइप दे दिया, आप पीछे से बैक एंड पे काम करते जा रहे हो, आप कस्टमर भी चेक करते जा रहे हैं, आप भी चेक करते काम करते जा रहे हो। आपने कस्टमर को कहा कि यार मैंने इसमें जो है लॉगिन कंप्लीट कर लिया, कस्टमर ने अपने मोबाइल में चेक किया, ID बनाई, लॉगिन किया, हो गया। कस्टमर ने कहा यार ठीक है, प्रोटोटाइप भी सही चल रहा है, कोडिंग भी सही चल रही है। दिस वन इन्वॉल्व्स प्रोटोटाइपिंग। अब कस्टमर के पास अगर प्रोटोटाइप है ना, तो उसके दिल में सुकून है, उसको पता है कि यार ये मेरा प्रोग्राम कैसा बन रहा है, इसने तो मुझे डिजाइन भी दे दिया। इसके बेटे बेनिफिट्स क्या है? इसका पहला बेनिफिट ये है कि आपके पास जो आपका डेवलपमेंट का टाइम है वो बहुत कम हो गया है। इट हैज़ रैपिड फ्रीक्वेंट कस्टमर फीडबैक। कस्टमर की बहुत जल्दी से फीडबैक आ रहा है, क्योंकि उसको हम एप्लीकेशन जो है दे चुके हैं एक सैम्पल वर्जन में, और हम पीछे अपने बैक एंड पे काम करते जा रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी फ्लेक्सिबल, क्योंकि रिक्वायरमेंट आपकी इवॉल्व कर सकती है फीडबैक से प्रोग्राम डेवलपमेंट के अंदर। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सिस्टम आर डेवलप साइड बाय साइड जो है सिस्टम डेवलप हो रहे हैं। मॉडिफिकेशन भी जो है आसान है और हर पार्ट जो है इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। इसके ड्रॉबैक्स के अंदर, सिस्टम्स अंडर डेवलपमेंट नीड्स टू बी मॉड्यूलर। यस, जो जो चीज़ें डेवलप हो रही है उनका उनको एक अलग से मॉड्यूल लाजमी होना चाहिए कि हम सिर्फ इस पे काम कर रहे हैं। और जो टीम है वो भी स्किल्ड लोग होने चाहिए। अब सारे हमने ऐसे ही लोग बिठा दिए, वो तो आपस में ही लड़ना शुरू कर देंगे कि ये तुमने किया है, तुमने किया है, तुमने किया, उन सब में जो एक जंग चढ़ जाएगी। तो वी नीड अ गुड लीडरशिप, वी नीड अ टीम ऑफ इंडिपेंडेंट और गुड डेवलपर जो चीज़ों को समझें, काम तरीके से करें, काम को कटाएं ना। ऐसा ना हो कि वो अभी चल गया, बाद में जो है कोई और एरर आ गया। एंड दिस इज ऑल्सो नॉट सूटेबल फॉर शॉर्ट एंड सिंपल प्रोजेक्ट्स। So, do you guys have any queries in this R&D, or if you want me to explain it back again?
जल्दी से बताओ मुझे। अब्दुल्ला, आमिर, अब्दुल्ला, आतिफ, अमान एंड अरमान, महक एंड मोहसिन। क्लियर है। हेलो महक, इज दिस क्लियर? Okay, so I am also providing you with the recording of this.